एंड हिबा आपने भेजा क्या? The date sheet? हाँ, डेट शीट। So I'll send in अच्छा ठीक है, डेट आपको याद है तो हम अभी ही लिख लेते हैं, मैं बस गेटिंग दिस थिंग डन। कब से स्टार्ट हो रहा है वो डेट याद है आपको? so 13th. 13th। Yes. एंड अब्दुल्ला, व्हाट अबाउट यू? आपने शायद भेजा था अब्दुल्ला, है ना? आई थिंक आपने भेजा। बेटा लेट मी सी। अब्दुल्ला ने भेजा है। हाँ, योर्स इज स्टार्टिंग अ बिट लेट। आपका 21st फेब से हो रहा है। ठीक। So mine क्या? first exam, it's chemistry itself. ओके। Hello. और आपके स्कूल चल रहे हैं? Yes, sir. I will discuss briefly the electrochemical cell. Okay, I will briefly discuss the electrochemical cell and then we will move on to hydrocarbons. So let us start with a simple idea that each and every spontaneous change, what is spontaneous? It doesn't mean that it will happen very quickly. Spontaneous का मतलब होता है it happened on its own. Human does not have to put in any energy. Those changes are spontaneous change. So whenever there is something spontaneous change happening, we can derive electricity or we can store there will be energy that will be emitted, है ना? क्या होगा? There will be energy that will be released and we can store that energy, and we generally store that energy in the form of electrical energy, right? So all the spontaneous change can be transformed into electrical energy. A very good example of spontaneous change is what is we get hydroelectricity, right, from dams and all. Dams, they have water moves down, then the turbine moves, and that movement of turbine, it generates electricity. Now, the generates is a bad word. It transforms one form of energy to another form of energy, है ना? ऐसे तो आपको पता होगा, we say this like we know this very clearly that matter and energy both can neither be created, है ना, nor be destroyed. अगर हम लोग इसको जनरेट नहीं कर सकते तो वाइट जनरेटर क्यों बोला जाता? तो लैक ऑफ अ गुड वर्ड बोला जाए तो दैट वुड बी बेटर। जनरेटर नहीं होता, वो जनरेट नहीं करता, इट जस्ट चेंजेस द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, सो व्हेनेवर यू स्टडी एनर्जी, you will study two types of energy. You will study the transfer of energy from one body to another, and you will study transformation of energy. ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी तो हम लोगों ने पढ़ा कहाँ पे? थर्मोडायनेमिक्स। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी you will in detail you will learn in electrochemistry, that is in 12th standard. लेकिन electrochemistry में there are redox reaction happening in all the electrochemical cells. That is why थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे आपके पास है, but this is mentioned and explained in detail in 12th standard in the chapter. एक पूरा chapter है electrochemistry के ऊपर, उसमें we are learning about the transformation of energy. Now very basic idea लेके चलते हैं हम लोग। We know that NaCl forms, and how does NaCl forms? NaCl forms Na, it gives electron to chlorine, right? There is a transfer of electron from sodium to chlorine. तो उसमें क्या बन जाता है? Sodium gets Na positive and chlorine becomes Cl negative, and that is why this happens. Now we are starting from a very naive idea. It is very unrealistic, but हम ये assume करके चलते हैं कि I just want to run electrons in a wire. If I can run electrons in a wire, then I can run. If the electron is running in a wire, that means electricity is there. So let us suppose that I have sodium here like this, and I have chlorine here like this. Obviously, it will be very difficult to have chlorine as Cl. We will be having Cl2, but let us assume everything is possible, and let us assume that we have added a wire here. Now sodium and chlorine, sodium can give electron to chlorine, right? And if I put a bulb here, since electron is transferring, this bulb is going to glow. Okay. So they started with the idea that if we make the electron flow in wires, when there is a chemical change happening, when there is a transfer of electron, देखिए redox ही हो रहा है बिल्कुल यहाँ पे, sodium is getting oxidized, chlorine is getting reduced. So whenever redox reaction takes place, there will be movement of electron, and when there is movement of electron, if that movement of electrons happens in a wire, that means we can, if it happens in a wire, that means we are generating electricity, we can use that electricity.
So they started with this, but they ended up with this figure, this complete setup. पहले तो सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस है. They said that we should have metal and metal. Solid में आपके पास रिएक्शन इस तरह कराना ज्यादा आसान होगा. And they also saw that when you place metal in its solution, it forms ions, है ना. अगर आप Zn metal को ZnSO4 में डालेंगे तो there will be an equilibrium between zinc to Zn2 plus and Zn2 plus will be transferring back to zinc. ठीक है. Those type of equilibrium always exist when you have zinc dipped in ZnSO4. तो ये आपके पास Zn, this equilibrium exists 2 plus 2 इलेक्ट्रॉन. तो जब आपके पास जो ZnSO4 सॉल्यूशन है उससे जिंक में ट्रांसफर होते रहता है, जिंक जो है जिंक 2 प्लस में ट्रांसफर होता है. दिस equilibrium it always exists between metal and its ion. So they started with this idea. They took ZnSO4 here and they took CuSO4. Okay, they took CuSO4 and here they dipped zinc and here they dipped copper. Then they connected both of these through a wire. एक बल्ब लगा देते हैं यहाँ पे, है ना. Connected these through wire. Now here we have ZnSO4. Here we have CuSO4. ठीक है. This is rod of zinc rod, and this is copper rod. ध्यान से देखते हैं क्या हो रहा है. First of all, zinc will lose electron like this in the zinc compartment. In zinc compartment, what happens? Zinc loses electron. It forms Zn2 plus and 2 electron. ठीक है. ध्यान से देखिएगा एक एक चीज को. ठीक है. बहुत अच्छे से समझिएगा. 12th क्लास में थोड़ा सा आसान हो जाएगा आप लोगों को समझना फिर. See, this zinc and this zinc is different. How are these two zinc different? Can someone tell me? ये जो Zn लिखा है हमने और ये जो ZnSO4 में Zn है वो दोनों अलग कैसे हैं बताएं जरा. Anyone? How many of you think they are same? Raise your hand. How many of you think both of these zincs are same? नहीं, अब हमने तो अलग बोल दिया तो अलग ही होगा, है ना. किसी को पहले लग रहा था, मेरे बोलने से पहले ऐसा लग रहा था कि दोनों अलग हैं या दोनों सेम है. Raise your hand if you thought it was same earlier. देवांगी, फहद, हिबा, तारीफ, अब्दुल्ला. अच्छा, सबको पता है. देवांगी, you know that they are different. Yes, देवांगी, क्या लगता है आपको, अलग है या सेम है? What happened, Devangi? Can you answer? Sir, not sure. Not sure. फहद, क्या लगता है आपको? माइक ऑन करके बताएं. सोच रहे हैं? अच्छा, कुछ उन्होंने बोला है. Why it is different, फहद? Because why is it different? हिबा, what do you think? इतना टाइम लगेगा तो कैसे चलेगा बताइए. हिबा, what do you think? Yes, हिबा. So is it the zinc rod, like from there Zn plus plus to my E-man? That is correct. ये जो जिंक है, this zinc is the metal zinc, है ना. तो ये कहाँ पे आपका, this is zinc here. ठीक है. Now is ये zinc what is happening? It is
गिविंग Zn2 प्लस कहाँ पे, सोल्यूशन में, ठीक है, दिस इज गोइंग इन द सोल्यूशन एंड दिस 2 इलेक्ट्रॉन ये सोल्यूशन में नहीं जाता, ये कहाँ रहेगा, रेड में ही रहेगा, दिस विल बी ऑन द रॉड इटसेल्फ. सो जिंक, दिस इज फ्रॉम रॉड, this is to solution and this will be to rod. Is this clear, yes or no? Please tell me, all of you. Is this clear? Devangi, Hiba, Fahad, all of you, Abdullah, Tarif, is this clear, yes or no? Yes. Yes, sir. Okay, to the solution. Now, if zinc rod is getting converted to Zn2 plus, can I say that in zinc compartment, concentration of Zn2 plus is increasing? Can I say that? Yes or no? Please tell me, guys. Concentration of Zn2 plus is increasing. Can I say that? क्योंकि क्या हो रहा है, जिंक रॉड जो है एंड व्हाट आई कैन से, जिंक का मास जो है डिक्रीज कर रहा है. Yes or no? The zinc rod mass is decreasing and Zn2 plus concentration is increasing. Can I say that? Yes or no? Please tell me, guys. सही है? Yes, sir. ठीक है. अब देखिए, अब मिल गया आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रैवल किया, इट ट्रैवल्ड, बत्ती जल जाएगी अब, इट ट्रैवल लाइक दिस एंड इट got in the copper compartment. अब देखते हैं कॉपर कंपार्टमेंट में क्या हो रहा है. In the copper compartment, the 2 electrons that I had from zinc, it will meet 3 things. क्या क्या मिलेगा इसको, SO4 नेगेटिव मिलेगा कॉपर CuSO4 में, इसको क्या मिलेगा, कॉपर रॉड मिलेगा, और इसको क्या मिलेगा, कॉपर 2 प्लस मिलेगा, कॉपर सल्फेट से ना, CuSO4 में से कॉपर 2 प्लस मिलेगा. Now this 2 electron, it will meet SO4 negative and it will say that no, I will not be friends with you. Why? Because I am also negative, you are also negative, we will repel each other. Then the 2 electron, it will come and it will meet copper. Copper will say that, wait a second, I am a metal, I have a tendency to lose electron. I don't gain electron, I am a metal. Metal have a tendency to lose electron. So please don't come to me. But when these 2 electrons will meet copper 2 plus will be happily accepting them and converting itself to copper. See what happens here in copper compartment. In copper compartment, what is happening? We have copper 2 plus. बताइए ये copper 2 plus कहाँ पे है, solution में है या rod में है? Where are these copper 2 plus ion? हाँ जी, copper 2 plus कहाँ पे होगा? Solution का होगा, है ना? So this is from solution. This is from rod to electron. Rod में ही आया होगा यहाँ पे. This is to rod. Now, what is happening in the copper? In the copper compartment, I can say that the concentration of copper 2 plus क्या हो रहा है? Increase हो रहा है, decrease हो रहा है? बताएं. Copper 2 plus की concentration क्या हो रही है? Decrease. Decrease हो रही है, right? It is decreasing. Then we have copper का mass जो rod में है क्या हो रहा है? What is happening to the mass of copper? Increase. It is increasing. ठीक है? It is increasing. अच्छा. Copper 2 plus की concentration decrease कर रही है. That is why I can say SO4 2 negative. वो तो उतना ही था पहले, मानी दोनों पहले कितने थे, 10-10 थे, अब कॉपर 2 प्लस घट गया, यानी कॉपर SO4 2 नेगेटिव ज्यादा हो गया. करेक्ट है गाइस? यस और नो? प्लीज टेल मी, ऑल ऑफ यू एग्री विद दिस? Yes, sir. ठीक है. नाउ सी व्हाट हैपेंस slowly in the zinc compartment. Can you see there is an increase of positive charge? It will become positive, yes or no? और यहाँ पे SO4 2 नेगेटिव अगर बढ़ता जाएगा तो ये धीरे धीरे क्या बन जाएगा, नेगेटिव बनता जाएगा. यस और नो? प्लीज टेल मी. Yes, sir. ठीक है. Now when the zinc compartment will become positive, the copper compartment will become negative. Then the electron will say, wait a second, zinc, why are you sending me to copper? It is already negative. Zinc में positive है तो electron will be attracted towards the zinc compartment and the bulb will stop glowing. Is this true? Yes or no? Make sense, everyone? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Yes. देवांगी, फहद, तारीफ, अब्दुल्ला, वजीहा तो अभी आई है, इतना लेट आती हैं, ये क्या समझ में आया? हाँ वजीहा, क्या लेट हो, क्यों फिर से लेट हो गए आप? यस वजीहा. वजीहा माइक ऑन करके, आपकी आवाज नहीं आ रही है वजीहा. ठीक है. Now the electrons are saying that I will not go to the zinc, to the copper compartment. I will stay in the zinc compartment. Why? Because zinc compartment is positive.
So that is why scientists thought that. First of all, scientists लोग को लगेगा कि क्या बोलते हैं, बत्ती जलते रहना चाहिए हमेशा ना, तो रिएक्शन हो रही बत्ती जलता रहेगा जब तक ये जिंक रॉड का मास पूरा का पूरा खत्म ना हो जाए, तब तक बत्ती जलते रहनी चाहिए, लेकिन वो होता नहीं है इस तरह से, राइट? व्हाट हैपेंस, पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे पोलैरिटी चेंज हो जाती है. देन दे एडेड सॉल्ट ब्रिज. क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज. इट इज अ इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब जिसमें हम लोग अगार अगार सॉल्यूशन रखते हैं. इन दिस वी कैन हैव सॉल्यूशन सच एज KCl वगैरह हम लोग रखते हैं. मेनली वी यूज KCl याद रखिए ये भी आप, ठीक है? सो वी हैव K प्लस एंड Cl नेगेटिव, है ना? K प्लस रहेगा और Cl नेगेटिव रहेगा. नाउ as soon as this compartment starts getting positive, तो क्लोरीन नेगेटिव भाग भाग के यहाँ पे आएगा and it will neutralize and it will neutralize this positive charge, तो ये neutral बन जाएगा. As soon as this compartment, the copper compartment starts getting negative, this K positive will come running and it will do what? And it will neutralize this negative charge. ठीक है? So what is the salt bridge doing? It is main work is to neutralize, to maintain the electrical neutrality of both the compartments. ठीक है? किसी को positive, अब क्या होगा? Now it will keep on running until and unless the zinc rod is completely depleted. ठीक है? Now what is the जो यहाँ पे electricity flow हो रही है, that electricity is flowing because of what? That electricity is flowing because of the movement of electron. तो यहाँ पे electrical carrier कौन है? Electricity का carrier क्या है? Electrons है. Now zinc rod will have negative polarity. ठीक है? The copper rod will have positive polarity. ठीक है? Because electron कहाँ पे आ रहा है? Copper के पास आ रहा है, right? The electron will be towards this positive charge. ठीक है? तो electron जहां से निकल रहा है that is negative. Electron जहां पे पहुंच रहा है that is going to be positive, because when the electron, all the electrons are here in the zinc rod, है ना? 2 electron कहाँ पे है? Rod में. कौन से rod में? Zinc rod. That is why this zinc compartment will have a negative polarity यहाँ पे, and this copper compartment is going to have positive polarity. First, next thing is that. Now also one more thing. Wherever there is oxidation happening, that will be what? Zinc compartment में क्या हो रहा है? Oxidation हो रहा है. So this is going to be your anode. And जहां पे reduction होता है उसको क्या बोलते हैं? Cathode बोलते हैं. That is your cathode. So all of you understood the working of this cell? Yes or no? Please tell me, guys. हाँ जी बताएं. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है? तो ये सेल आपको फिर से मिलेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में. ठीक है? आप एक एनसीईआरटी का सवाल था डिपिक्शन, तो ये डिपिक्ट कर दीजिएगा. उसमें पोलैरिटी वगैरह बतानी होगी. एनोड में क्या हो रहा है, कैथोड में क्या हो रहा है, कौन सा पॉजिटिव चार्ज है, कौन सा नेगेटिव चार्ज है, वो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी. ठीक है? नाउ आई विल मूव ऑन टू हाइड्रोकार्बन. वजिया आपको अब सब समझ में आएगा यहाँ से. 24 Jan and this is what? Tuesday. चैप्टर का नाम लिखिए हाइड्रोकार्बन्स. Hydrocarbons, no? B में. ना हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं सबसे पहले दो पार्ट में. हाइड्रोकार्बन्स आर व्हाट? द कंपाउंड्स दैट कंटेन ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन. हाइड्रोजन एंड कार्बन के अलावा कुछ नहीं होगा यहाँ पे. ठीक है? सो हाइड्रोकार्बन्स इट कैन बी फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफाइड इनटू टू डिफरेंट कैटेगरीज. एक कैटेगरी है आपका एसाइक्लिक एंड द अदर कैटेगरी इज साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स. यू हैव एसाइक्लिक, also known as acyclic or also known as open chain structure, and then you have cyclic structures जिसमें आपको क्या मिलेगा? रिंग मिलेगा. Acyclic can be divided into two major categories. One is saturated and the other is unsaturated. Saturated and then you have unsaturated. Now the cyclics are also divided into two major categories. एक को बोलते हैं aliphatic and the other one is aromatic.
सैचुरेटेड में आपके पास बस एक ही कैटेगरी है, दैट इज एल्कीन। अनसैचुरेटेड हैज टू कैटेगरीज, एल्कीन एंड एल्काइन। एलिफैटिक में आपके पास you have cyclic, but these don't, whatever is not aromatic in cyclic, they are aliphatic. Aromatic में you will have benzene like structures जहाँ पे aromaticity maintain होगी. Aromaticity there is a, it is a topic in this chapter, ठीक है? All the compounds that are aromatic in nature, जिसमें aromaticity होती है उनको aromatic बोलते हैं. If they don't have aromaticity, then they are known as aliphatic. Now who will tell me what is the general formula for alkene? Alkene का general formula बताएं जरा. CN, टेंथ में पढ़ा होगा ना H2N आप plus लोग. हाँ, H2N+2. एल्कीन का बताएं. H2N. H2N पूरा बोले भाई, इतना क्या. CN H2N. एल्काइन का CnH2n minus 2. CN H2N-2. ठीक है. एलिफैटिक में जो आपके पास जो साइक्लो एल्केन्स होते हैं ना, उनका भी आपका क्या होता है. साइक्लो एल्केन्स का कौन बताएगा, बताइए जरा. साइक्लो एल्कीन रिंग होगा, 3 कार्बन का रिंग, 4 कार्बन का रिंग, 5 कार्बन. चलिए बताइए जरा, फॉर्मूला खुद से बनाइए. हाइड्रोजन काउंट कर सकते हैं ना आप लोग, तो हाइड्रोजन काउंट करके जनरल फॉर्मूला बताइए क्या हो रहा है. CnH2n. हाँ सही. साइक्लोएल्केन का भी क्या होता है, CnH2n. तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपके पास CnH2n करके आया ना, कुछ इस तरह से मान लीजिए आपको बोला जाए C5H10, ऐसा नहीं कर दीजिएगा दिस कैन बी ओनली एल्कीन. C5H10 दो चीज हो सकता है, इट कैन बी एन एल्कीन और इट कैन बी अ साइक्लोएल्केन. साइक्लोएल्केन का क्या होता है, CnH2n. ठीक है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर दिस. First of all, we will learn about alkene, its chemical and physical properties. Alkene, its chemical and physical properties. Alkyne, its chemical and physical properties. ठीक है. Can I move on? Yes or no, please tell me. लिख ले सबने. Oh, aromatic में please एक second, my bad. हमने benzene का structure बहुत ही अधूरा बना दिया. Please correct this thing. Add the bonds, double bonds add कर दीजिएगा. 3 चीज पढ़ना रहता है. Method of preparation, उसके बाद physical properties, उसके बाद chemical properties. ठीक है. तो जब हम लोग पढ़ेंगे, एलिफैटिक नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको. ठीक है, एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, एंड देन यू हैव एरोमेटिक्स. मेनली यही आपके पास है. चलिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट एल्कीन. पहला टॉपिक क्या होगा हमारा, एल्कीन. एल्कीन में आइए बताइए. अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज नोन एज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, बताएंगे क्या कोई. Why these are known as saturated and the alkene को saturated क्यों कहते हैं, alkene alkyne को unsaturated क्यों कहते हैं. Saturated and unsaturated, you know these are general English terms, right? Saturated and unsaturated. कोई general meaning पता है किसी को, saturated क्या मतलब होता है. केमिस्ट्री में नहीं, जनरल इंग्लिश में. Cannot add any more solute to the solvent. हाँ ठीक है, प्लीज होल्ड ऑन टू दैट आइडिया. ये बात, cannot add more. ठीक है. तो जब आपके पास 2 कार्बन होता है ना, 2 कार्बन में आप 6 से ज्यादा हाइड्रोजन नहीं डाल सकते. सही है. कैन आई ऐड एनी मोर हाइड्रोजन्स, इज इट पॉसिबल. No. No. नहीं है ना. लेकिन वहीं अगर आपके पास इफ यू हैव डबल बॉन्ड, अब आपके पास क्या है, 2 कार्बन है, लेकिन इसमें क्या हो सकता है, वी कैन ऐड 2 मोर कार्बन इनटू दिस. यस और नो. Yes. है ना. अगर पाई बॉन्ड हटा दे तो, हम बोल रहे हैं पाई बॉन्ड हटा दीजिए, 2 कार्बन है आपके पास, बॉन्ड्स को चेंज करके सिर्फ, है ना. हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स नहीं हटा बढ़ा रहे हैं. आई एम नॉट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम, स्टिल बाय सम रिएक्शन आई कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर. करेक्ट है.
Yes or no? Without increasing carbons, I can increase hydrogens. Yes or no? Please tell me, guys. बात समझ में आ रही है? देवांगी, हिबा, तारीफ, Yes, sir. है ना? तो क्या हुआ? जब आपके पास complete hydrogens आ गए, so this is going to be what? Saturated. You cannot add more hydrogens. This is saturated. And when you can add more hydrogens, it is unsaturated. Got it? Similarly, what you will have unsaturated? CH, triple bond C, and then you have H. This is also unsaturated. Why it is unsaturated? Because we can add more hydrogens. Now, moving on to alkanes. Alkanes में सबसे पहले लिखेंगे number 1 method of preparation. MOP का मतलब क्या? Method of preparation of alkenes. The first method of preparation is by catalytic hydrogenation. यहाँ से एक काम कीजिए, method of preparation से 1 हटा दीजिए, यहाँ पे 1 लिख देते हैं हम लोग. Catalytic hydrogenation. अब थोड़ा सा ना हम लोग क्या करेंगे, वर्ड्स को भी आप लोग समझिएगा. कैटालिटिक मतलब क्या होता है? कैटलिस्ट वी आर गोइंग टू ऐड, एंड कैटलिस्ट आर जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट्स. देन उससे कैटलिस्ट आपको मान लीजिए नहीं समझ, लेकिन बट हाइड्रोजनेशन इज समथिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड. आप क्या ऐड कर रहे हैं? हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं. ठीक है, हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं किसका? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में अगर हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो एल्केन मिल जाएगा. सो लेट अस सपोज वी हैव CH2 डबल बॉन्ड CH2. बताइए क्या ऐड कर रहे हैं यहाँ पे हम? What should I add here? हाइड्रोजन ऐड करना. कैसे लिखेंगे हाइड्रोजन को? कैसे लिखेंगे हाइड्रोजन को? हाँ, H2 लिखेंगे. H मत लिख दीजिएगा. हाइड्रोजन क्या होता है? मॉलिक्यूल की बात करें, एलिमेंट की बात नहीं करें. जैसे रिएक्शन आ गया तो रियल लाइफ में एलिमेंट फॉर्म हाइड्रोजन इट एग्जिस्ट एज H2 हाइड्रोजन गैस. ठीक है, एंड यू कैन ऐड नहीं पढ़ पाता. क्या ऐड करना है इसके साथ? नहीं पढ़ पाता. नहीं और पढ़ और पाता, इसमें से कोई एक भी आप ऐड कर दीजिएगा. then what is going to happen? See, all of these things are finely grained. Nickel, palladium and platinum, these are metals and these are finely grained and they are like this. When you add hydrogen gas into it, then hydrogen sticks onto these things in such manner. And उसके बाद जब आप alkene डालिएगा तो C double bond C is there. One is going to give the electron and the other is going to come up with a bond like this. ठीक है, तो इस तरह से आपके पास यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाता है ऐसे करके, और ये वाला बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन दे देता है कार्बन को, यहाँ से इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है. सो इट अटैचेस. वन ऑफ द हाइड्रोजन विल अटैच इनटू दिस कार्बन एटम एंड द अदर हाइड्रोजन इज गोइंग टू अटैच ऑन दिस कार्बन एटम. ये याद रखिएगा, सेम डायरेक्शन से हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं. इसको हम लोग बोलते हैं सिन एडिशन. मे बी दिस टर्म इज नॉट वेरी क्रूशियल फॉर यू, बट स्टिल सेम साइड से दोनों हाइड्रोजन अटैच हो रहे हैं. ओके, सो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट? आई एम गोइंग टू गेट CH2 था, एक बढ़ जाएगा 3 and CH3. Okay, I will get CH3. Now, for example, if I have to make identify a suitable alkene for preparation of butane. ठीक है, now you have, पहले यहाँ पे इस एग्जांपल को देख लीजिए. How many carbons does this alkene have? Tell me. इस alkene के पास कितने कार्बन है? फर्स्ट वाले के पास यहाँ पे 2. How many carbon does this alkene have? 2. And how many carbon does this alkene have? The product? 2. यानी कि जो भी आपको एल्केन चाहिए, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम एल्कीन में भी होना चाहिए. दैट इज व्हाई, टेल मी, ब्यूट में कितने कार्बन हैं? 4. तो आपके पास 4 कार्बन एटम्स होना चाहिए एल्कीन में. नाउ यू कैन ऐड अ डबल बॉन्ड. कहाँ पे? या तो फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन में आप डबल बॉन्ड ऐड कर दीजिए, सेकंड और थर्ड में ऐड कर दीजिए, या फिर आप थर्ड और फोर्थ में कर दीजिए. बट यू विल सी दैट इफ यू ऐड डबल बॉन्ड इन थर्ड एंड फोर्थ, तो ये भी क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द नेम फॉर दिस? ब्यूट 1ene. करेक्ट? यस और नो? प्लीज टेल मी गाइस. ये भी ब्यूट 1ene है और ये भी ब्यूट 1ene है. करेक्ट है कि नहीं? नहीं, बताइए, ये दोनों स्ट्रक्चर अलग हैं क्या? बोथ ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट और सेम? Same. सेम है ना? ठीक है, तो यू कैन हैव ब्यूट 1ene
आप ऐसे लिख दीजिएगा, the presence of, let us say, nickel, I will get butane, double bond है H2. In the presence of PD, I will also get butane. So what are the alkenes? आपको अगर ऐसे लिखा है ना, आइडेंटिफाई अ सुटेबल alkene, तो स्ट्रक्चर चलेगा। लेकिन अगर आपको आइडेंटिफाई नहीं लिख के क्या लिख दिया है, name the alkenes for preparation of, that can be used for preparation of butane, तो आप क्या लिखिएगा आंसर में? Will write but 1ene and but 2ene can be used for preparation of what? Butane. Clear, guys? Yes or no, please tell me. Now, similar reaction can be done with alkyne also. You have CH3, single bond C with triple bond C and CH3. You add hydrogen gas into it in the presence of nickel PD or PT, and you will get CH3. Now, please remember how many moles of hydrogen will be required. In the previous case, when we had alkene, I had one pi bond. I had to break one pi bond, so I added one hydrogen molecule. Now, since here we have two pi bonds, I will be adding two hydrogen molecule, and both of these carbon will get two hydrogens each. I will get CH3 bonded to carbon atom. Now, this carbon will get two hydrogens. Bonded to this carbon will get again two hydrogens, and then CH3. Please write this down. Now, एक सवाल आपसे हम कर रहे हैं, आंसर कीजिएगा चैट में। Can we prepare methane from this method? बताइए क्या होगा आंसर? तीन आंसर आ चुके हैं। ओके, कैन समवन एक्सप्लेन व्हाई? फहद, वजीहा, देवांगी। अच्छा, एक सेकंड, हिबा आपको क्या लगता है? अरे वजीहा ऐसे कैसे काम चलेगा? मीथेन होता है भाई, मीथेन क्यों नहीं होता? मीथेन होता है, CH4 होता है उसका फॉर्मूला। ओ अच्छा, ठीक, हम समझ गए आप क्या कहना चाहती हैं। माय बैड, ओके, ठीक है, हम समझ गए। हिबा, व्हाट डू यू थिंक? हिबा, आपने आंसर नहीं किया, लेट मी मेक यू थिंक। हिबा, क्या ख्याल है आपका? So, I'm हाँ not जी, sure. फिर भी I'm not sure, sir. अरे आप सोचिए ना, कैसे सोच भी नहीं पा रहे, अप्रोच नहीं कर पा रहे बिल्कुल। ब्यूटेन बनाना था हमको, है कि नहीं? Yes, ब्यूटेन sir. वाला सवाल देखा था आपने? नाउ व्हाट डिड आई आस्क? क्या इंपॉर्टेंट था? इफ आई हैड टू प्रिपेयर ब्यूटेन, देन एल्कीन में भी कितने कार्बन होने चाहिए? 4. है ना? हमको मीथेन बनाना है इस मेथड से, यानी कि आई हैव टू मेक मीथेन फ्रॉम एल्कीन या एल्काइन, करेक्ट है? Yes, sir. Is there any suitable alkene that can make methane? Can you think of any? एक कार्बन का कोई alkene बन सकता है हिब्बा? Can we make any alkene with one carbon? नहीं ना, no. No. है ना, आ गया? No. Yeah. ठीक है, दो तरह के सवाल होते हैं। If they ask can we prepare methane from this method, you will answer no. If they ask also explain why, तब आप आंसर लिखिए, ठीक है? Please remember this. हाँ, because there is no methane, हम समझ गए वज़ी आप क्या कहना चाह रहे थे। You will say as there can't be alkene or alkyne of one carbon। ठीक है, एक कार्बन का alkene या alkyne नहीं बन सकता, ठीक है? दिस इज फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है आपका फ्रॉम alkyl halides। क्या है?
दिस इज डिहाइड्रोजनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। सेकंड है आपका फ्रॉम अल्काइन हैलाइड्स। अल्काइन हैलाइड्स में आपके पास दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। यू हैव द वुड्स रिएक्शन and then you have the reduction of alkyne halides. What are alkyne halides? Alkyne halides are haloalkene, जहां पे आपके पास you have R that is bonded to X. R is any alkyl group and X will be fluorine, chlorine, bromine or iodine. Okay, one of the halogen atoms. First of all, we will look at the number 1. A में हम लोग देखेंगे Woods reaction. First of all, let us see this reaction, how this reaction happens, and then we will write the statement. For example, you take Rx and you take Na. Sodium, you cannot have water, and that is why we use the solvent dry ether. Dry ether, बताइए क्या state होगा इसका? It will be liquid state, gaseous state, या फिर solid state में होगा dry ether. Tell me. देवांगी क्या ख्याल है आपका? Solid, liquid या gas? Solid. Solid. हिबा क्या ख्याल है आपका? Solid. ठीक है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ड्राई ईथर जो होता है ना, ड्राई ईथर इज लिक्विड। तो ये ड्राई कैसे है? हियर इन केमिस्ट्री व्हेन वी से ड्राई वी मीन एब्सेंस ऑफ वाटर। याद रहेगा ड्राई का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्राई? Absence of water. तो जो ईथर हम लोग ले रहे हैं, ईथर इज अ सॉल्वेंट, इट विल बी इन लिक्विड स्टेट। ओके, इट विल बी इन एब्सेंस ऑफ वाटर। ठीक है सर, तो ड्राई ईथर इज गोइंग टू बी अ सॉल्वेंट, लिक्विड इन स्टेट, बट इट विल नॉट हैव वाटर। क्यों नहीं होगा? बिकॉज हम लोग किससे रिएक्ट कर रहे हैं? सोडियम के साथ। क्या होता है? सोडियम और पानी अगर मिल जाएंगे तो what happens when sodium will react with water? आपने नहीं देखा है क्या होता है? हाँ, फहद ने ठीक बोला, फहद ने बहुत अच्छा जवाब दिया। Let me paste this. बूम होता है। क्या होता है? बूम होता है, it pops out। ठीक है, it is very exothermic reaction, that is why we don't use water when we are having sodium। ठीक है, ड्राई ईथर का ये इस्तेमाल होता है। So you are going to get R bonded to another R. So basically we take 2 moles of Rx, 2 moles of Na, and we get NaX. अब क्या मिलता है? NaX वापस मिलता है। For example, if I have CH3Br, आपको रिएक्शन इसी तरह से दिया जाएगा, और या तो आपको इस तरह से भी दिया जा सकता है। The presence of sodium with dry ether, then what is going to happen here? CH3 will bond with another CH3 molecule. ठीक है, it will bond with another CH3 molecule and you will get NaBr as the product. जब आपके पास there are 4 carbon atoms, sorry यहाँ पे 3 carbon atoms, so Br की जगह कुछ और हो सकता है, क्लोरीन, फ्लोरीन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सोडियम and dry ether. Now tell me how many carbon atoms will be there in the product? Product में जो आपका alkene होगा, that will have how many carbon atoms? Send the answer in chat. फहद करेक्ट, देवांगी करेक्ट है। और ये देखिए, प्लीज ध्यान रखिएगा कि कैसे ज्वाइन होता है। यू विल हैव दीज 2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सो द कार्बन एटम कंटेनिंग Br of one molecule and the carbon atom containing Br of another molecule, they are going to join. अगर आप इसको इस तरह से ज्वाइन कीजिएगा ना, तो आपको ये स्ट्रक्चर, पहले आप खराब स्ट्रक्चर बना लीजिए। इस तरह से आपने ज्वाइन करा दिया, अब इसको आप ठीक से लिख लीजिए। कितना है? 1 2 3 4 5 6, दैट मींस 1 2 3 4 5 6। So this is normal hexane. Now let us see if you have some different type of structure. मान लीजिए आपको क्या मिला? इस तरह से मिला 2 bromopropane in the presence of sodium and dry ether. तो आप फिर से वही करेंगे, you will make another same molecule और उसके Br को आप यहाँ पे नीचे कर दीजिए, है ना, क्योंकि we have to join this carbon atom and this carbon atom. इन दोनों कार्बन आटम को ज्वाइन करना है, so I will join this two. तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा हमारा।
ठीक है ना। एक स्ट्रेट चेन ले लेते हैं, 1 2 3 4, लॉन्गेस्ट चेन ये है, और उसके बाद 2 और 3 में आपके कार्बन एटम्स लगे हुए हैं। सो आई विल ड्रॉ 1 2 3 4। सेकंड कार्बन एटम में आपके पास CH3, थर्ड कार्बन एटम में CH3। नाउ व्हाट विल बी द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर? दिस इज माय मेन चेन, दिस ब्लू वन इज माय मेन चेन। 4 कार्बन है यहाँ पे, you have 1 CH3 and another CH3, so it will be what? 1 2 3 4, so it will be 2 3 dimethyl ब्यूटेन। बात समझ में आ रही है सबको? ये सुनो पीछे मी, प्रोडक्ट कैसे बनाना समझ में आ रहा है सबको? हाँ या ना बताएं, Yes, sir. है ना? ठीक है। इवन इफ दे गिव यू समथिंग लाइक दिस, लेट अस सपोज आपको यहाँ पे Br दे दिया, ठीक है? ठीक, अब इसको कैसे बनाएंगे? कुछ नहीं बनाना है आपको, सीधा क्या करना है, ये Br किसी भी कार्बन एटम पे रहे, दैट इज सेम थिंग ना। आप 2 साइक्लोपेंटेन बना लीजिए, अब इसमें से इन दोनों को मिला दीजिए, चाहे इन दोनों को मिला दीजिए, एक ही बात होगी, ठीक है? सो यू कैन जॉइन एनी 2 कार्बन एटम्स। लिखिए जरा अगर लिखा नहीं है आप लोगों ने। सबने लिख लिया यहाँ तक? ये सुनो पीछे मी, हाँ जी बताएं। ना, अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्या, वुड्स रिएक्शन का स्टेटमेंट। व्हाट इज वुड्स रिएक्शन? प्लीज राइट, व्हेन alkyl halide when alkyl halides is treated with sodium, in the presence of dry ether, it leads to the formation of alkane with double the number of carbon atoms. ठीक है, तो आप जितने भी ले लीजिए, आपको क्या मिलेगा रिजल्ट में? कैसा alkene मिलेगा? डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगर डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाला मिल रहा है, दैट मींस इट इज not good for preparation of what we cannot prepare odd number of, we cannot prepare alkene with odd number of carbon atoms with this method. Woods reaction is not used for the preparation of alkenes with odd number of carbon atoms. Odd number of carbon atoms. ठीक है, डन? यस और नो? प्लीज टेल मी। नेक्स्ट, यानी इस रिएक्शन से भी हम क्या कर सकते हैं,
we cannot prepare methane using Woods reaction. ठीक है? Let us suppose we are doing a Woods reaction and we are taking two different type of alkyl halides. ठीक है? For example, हम लोग एक ऐसा reaction कर रहे हैं in which we are having CH3Br and we are also taking CH3CH2Br. ठीक है? क्या सोच के हम सोच रहे हैं कि 3 कार्बन आटम को बना लेते हैं and I'm using Na and I write dry ether like this. ठीक है? आप लोग मत लिखिएगा इस तरह से एग्जाम में, DE हम लिखते हैं इस तरह से dry ether के लिए. Okay, so we have CH3Br and CH3CH2Br. Now please see very आसानी से समझिएगा इसको. We have methyl bromide and we have ethyl bromide. We have two types of bromide. We have two alkyl halides here. We have the methyl bromide and we have the ethyl bromide. Now, some of the methyl bromide will be only in surrounding and only in the neighborhood. इनको सिर्फ और सिर्फ कौन दिख रहा होगा? methyl bromide ही दिख रहा होगा. They will not be knowing because we have million 10 to the power 20 10 to the power 21 भी ले लेना, million 6 बार million हो जाएगा. ठीक है? So we have millions of what? We have millions of molecule, and that is why some of the CH3Br will not be knowing that there is any ethyl bromide. Some of the methyl bromide will be having only methyl bromides in their surrounding. That is why these methyl bromide, they will react with themselves and they will form CH3 and CH3 bond. Yes or no? Is this clear? Yes or no? Please tell me. Correct है? बात समझ में ही क्या हो रहा है? देवांगी, फहद, हिबा, Yes, sir. है ना? एंड उसी तरह से कुछ इथाइल ब्रोमाइड होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि मिथाइल ब्रोमाइड है. दे विल बी ओनली हैविंग इथाइल ब्रोमाइड इन देयर सराउंडिंग एंड दे विल फॉर्म व्हाट? टेल मी. इथाइल ब्रोमाइड से क्या बनेगा? यस, टेल मी गाइस, इथाइल ब्रोमाइड से क्या बनेगा? यस, वजीहा करेक्ट. चैट में लिखें. तारीफ एंड अब्दुल्ला बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं ना. यस, देवांगी करेक्ट. फहद आप बताएं. फहद, हिबा, टेल मी. हिबा, एनी आइडिया क्या बनेगा इथाइल ब्रोमाइड से? डबल द नंबर ऑफ. सॉरी, यस हिबा, टेल मी. जोर से बोले जरा, आवाज नहीं आ रही है आपकी. So one second. 1 second. तारीफ एंड अब्दुल्ला, व्हाट अबाउट यू गाइस? हिबा, हम रुकें या बताएं आंसर? So I'm not sure. ठीक है. क्या होता है वुड्स रिएक्शन में? व्हाट हैपेंस? व्हाट टाइप ऑफ एल्केन डू वी गेट? डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. करेक्ट है? Yes, sir. Double the number. है ना? Yes. Now, we are in a, हम लोग मिक्सचर के उस साइड में जहां पे we have only ethyl bromides. Ethyl bromide do not know that there is any methyl bromide. So ethyl bromide, they will react with themselves. Yes sir, correct? Yes, sir. अच्छा, ये आपको ये assumption समझ में आ रहा है ना, that कुछ ना कुछ तो कंटेनर में ऐसा स्पेस होगा जहां पे we will have only ethyl bromides and ethyl bromide will not be in contact with methyl bromides. Can you have an idea about this? आप यहाँ पे क्लियर हैं? Are you with me till here? Yes, sir. है ना? तो बताइए, अगर इथाइल ब्रोमाइड में कितने कार्बन एटम्स हैं? How many carbon atom do we have in the ethyl bromide? 2. उसका डबल बनेगा. एल्किन जो भी बनेगा उसका डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे. Yes, sir. तो 4 कार्बन एटम के एल्किन को क्या बोलते हैं? 4 का बनेगा 2 into 2 डबल. 2 का डबल क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा. 4 का क्या बनेगा? Butane. ब्यूटेन. आसान था. Yes, sir. ठीक है. अब देखिए, now there will be some ethyl bromides and there will be some methyl bromide which will be in contact with each other and उनसे हमको क्या बनेगा? इसका CH3CH2 and इसका CH3 react करेगा and you will get
CH3, CH2, CH3. इसका I will get what? I will get propane. So आप बोलिएगा सर तो प्रोपेन तो बन रहा है, कैसे कहा आपने कि odd number of electrons, odd number of carbon atoms वाले नहीं बनेंगे? I'm saying this because once you have got the propane, this will be in the mixture, right? ये सारे के सारे क्या होंगे? It will be in a mixture, and it will be very difficult to separate these mixture because all of them are going to have similar melting and boiling points. ठीक है? तो boiling point जब similar होता है, that distillation से हम लोग फर्क कर सकते थे, but these are not easily separable. So please write when two different alkyl halides are treated with sodium in dry ether, they give a mixture of alkene which is difficult to separate. Therefore, Wood's reaction is not suitable for different alkyl halides. ठीक है? Will you write this down? Then we'll write another reaction. लिख लिया सबने? Yes or no? Please tell me, guys. All of you done? जल्दी लिखिए. हाँ. Done, everyone? Can I move on? Okay. Let me know if you're not done. ठीक है? I hope all of you are done. Now write the second method. किसके लिए? Wood's reaction alkyl halide वाले के साथ. Red pen से लिख रहे हैं. So write the next one. This is also used. This also uses what? Alkyl halide. It is reduction of alkyl halide. Alkyl halide का reduction हो रहा है. So you have RX alkyl halide. It reacts with Zn in the presence of HCl. किसके साथ react कर रही है? Zinc in the presence of what? HCl. Zinc और HCl के साथ react करने पे ये क्या दे रहा है? Also, basically it happens. Wait a second. It happens like this. ऐसा लिख लीजिएगा. H2 in the presence of zinc and HCl. Hydrogen gas के presence में. So this X is replaced by hydrogen. So you get RH. So अगर आपके पास CH3Br था plus H2 in the presence of zinc HCl, you are going to get CH3 में एक हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? CH4 हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, राइट? Similarly, if you have, let us suppose Br यहाँ पे plus H2 in the presence of zinc HCl, you are going to get propane. तो बस Br हटा देना, Br की जगह क्या हो जा रहा है? हाइड्रोजन लग जा रहा है. Then everyone, you can also make cyclic
After these reactions, wait a second. And write from carboxylic acid. Carboxylic acid में भी आपके पास दो methods हैं. First method is known as decarboxylation. And another is coal-based reaction. या फिर इसको coal-based electrolysis भी बोल सकते हैं. Right, the first method, decarboxylation. Decarboxylation में क्या होता है? You are going to take carboxylic acid plus soda lime. क्या लेंगे आप? Carboxylic acid plus you are going to take soda lime. Soda lime के साथ आपको क्या होता है? Soda lime क्या होता है वैसे? Tell me. Soda lime is a mixture of sodium hydroxide plus calcium oxide. And you are going to get from here RH alkene plus Na2CO3. Na2CO3. Here you had R plus 1 carbon atoms. मान लीजिए यहाँ पे कितना था? Let us say, for example, you had 4 carbon atoms. So here you are going to have only how many carbon atoms? 3 carbon atoms. R plus 1 था. आप यहाँ पे कितना? सिर्फ R है. So for example, let us write something like this. You have carboxylic acid, NaOH plus calcium oxide. There is some heat required. आप heat लिख लीजिए यहाँ पे. And you are going to get how many carbon atoms? 3 carbon atoms हो जाएगा. Plus you will get Na2CO3. Is this clear? Yes or no? Please tell me, guys. Yes, sir. है ना? उस तरह से फिर आपके पास similarly if you have CH3, COOH, same reagents, तो बताइए क्या मिलेगा हमको? What alkene will I get here? What alkene? वजीहा क्या repeat करें? हमको समझ में नहीं आ रहा है. What should I repeat? अच्छा, I think you are talking about the number of carbon atoms. Soda lime वाला. Soda lime is a mixture of NaOH and calcium oxide. What will be the product? यहाँ पे बताए ना, एक कार्बन आटम, दो कार्बन आटम, एक कार्बन आटम का एल्केन बनेगा. हाँ, मीथेन बनेगा. CH4. This will be CH4. Very good. Na2SO CO3. Yes, बस यहाँ correct. You'll get methane. तो मीथेन बनाने के लिए you have two different, at least यहाँ पे आपको क्या है? एक तो decarboxylation है, दूसरा कौन सा मेथड है? रिडक्शन ऑफ अल्काइल. ठीक है, दो मेथड आपको मिल गए हैं. किसके लिए? फॉर प्रिपरेशन ऑफ मीथेन. देन सेकंड इज कोल बेस्ड इलेक्ट्रोलाइसिस वाला मेथड. पार्ट 2 है आपका. कोल बेस्ड रिएक्शन. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर कोल बेस्ड रिएक्शन वी आर गोइंग टू टेक द सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, हम क्या करेंगे? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. तो बेसिकली जो आपके पास CH3COH है, to start with RCOOH. I will react this with let us suppose what, सोडियम के साथ आप इसको रिएक्ट कर सकते हैं, या फिर आप इसको किसके साथ रिएक्ट कर सकते हैं? NaOH के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं. ठीक है, so you can react this with let us suppose NaOH. और आपको क्या मिल जाएगा? You will get the sodium salt COO negative of carboxylic acid. सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोक्सिलेट भी बोल सकते हैं इसको. क्या बोल सकते हैं? सोडियम कार्बोक्सिलेट. नाउ you have this RCOO negative. साथ में Na पॉजिटिव लिखना तो वो भी लिख सकते हैं, नहीं लिखना तो वो नहीं लिख सकते. दिस जस्ट अ काउंटर आयन. इसका कोई रिएक्शन से लेना देना नहीं है. प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल्स. एंड व्हेन वी इलेक्ट्रोलाइज इट, आप यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस लिखिएगा.
From here you are going to get double the number of carbon atoms. आपको क्या मिलेगा? You are going to get R dash R. R dash R. तो ये जो R है उसका डबल हो जाएगा. Plus you are going to get from here H2 and NaOH. Hydrogen gas plus you are going to get NaOH. ठीक है. अब ये ध्यान रखिएगा. This is also known as electrolysis. Electrolysis में क्या होता है? If you remember, अभी हमने क्या बताया? Spontaneous reaction, whenever it happens, we use that spontaneous reaction to generate electricity. अब दूसरा transformation समझ लीजिए. If there is a non-spontaneous reaction, it requires energy. And if we give electrical energy to that reaction to make the reaction happen, what we are giving, आपको कुछ ना कुछ energy देनी पड़ेगी. किसी में heat देना पड़ता है. But those reactions in which we give electrical energy to make the reaction happen, those reactions are known as electrolytic reaction. And वहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं? Electrolysis हो रहा है. What do we say? We say electrolysis is happening. तो दोनों ही में सेम चीज होता है. एनोड और कैथोड होगा वहां पे, और आपको एनोड और कैथोड में डिफरेंट टाइप से रिएक्शन मिलेंगी. सो व्हेन यू हैव CH3COO नेगेटिव, तो यहाँ पे नॉट CH3CO नेगेटिव, आप ये लिख लीजिए. एट एनोड यू विल हैव R C डबल बॉन्ड O and O negative. This R C double bond O and O negative, it is going to lose 2 electrons. It is going to lose what? It is going to lose 2 electrons. ये हम लोग पढ़ेंगे. एल्कीन हम समझ नहीं आ रहा सर. फिर इसका मतलब एल्कीन और एल्काइन में भी MOP पढ़ेंगे. हाँ, एल्कीन और एल्काइन का अलग मेथड ऑफ प्रिपरेशन होगा ना, तो उसमें ही पढ़ेंगे. ठीक है. वी आर गोइंग टू टेक 2 of these molecule. Each of these carboxylate ion is going to give you 1 electron. तो 2 लिया है आपने, तो आपको क्या निकलेगा यहाँ से? -2 electron. ठीक है. You are going to get from here what? -2 electron. तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से हट जाएगा, तो ये जो एक सेकंड, इसको हम और अच्छे से दिखा देते हैं. ये ऑक्सीजन लाइक दिस एंड लाइक दिस. ठीक है. और नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे. यहाँ से आपने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो क्या मिलेगा आपको? R C double bond O and you will get oxygen. This will be neutral, but it will have only 7 electrons. ठीक है. अब इसके पास कितने हो गए? सिर्फ और सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. Now it is what it is going to do. It is इस तरह के आपको 2 मिलेंगे. Right? You will get 2 molecules like this. Now what it is going to do? It is going to take the electrons from the carbon atom. इस तरह से. ये देखिए. This has 2 electrons. एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये लेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये इसका आया. ठीक है. Both of them are going to make bond. आपको क्या मिलेगा? You will get 2 R free radical. ठीक है. एक R free radical यहाँ पे है, दूसरा R free radical यहाँ पे रहेगा. Both of these are going to contribute and they will form a bond R dash R. तो ये सारी चीजें कहाँ पे हो रही है? एनोड में हो रही है. एंड इन कैथोड, एनोड में देखिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन हो रहा है. कैथोड में क्या होगा आपका? कैथोड में आपके पास रिडक्शन होगा. कैथोड में होगा H2O प्लस इलेक्ट्रॉन. ये आपको देगा OH नेगेटिव प्लस H फ्री रेडिकल. H का क्या देगा? ये फ्री रेडिकल देगा. इसी तरह से ये 2 बार होगा. ठीक है. 2 इलेक्ट्रॉन, 2H नेगेटिव, 2H फ्री रेडिकल, और ये 2H फ्री रेडिकल से क्या मिलेगा आपको? H2 गैस. ठीक है. अच्छा, बाय द वे दिस इज आल्सो फॉर्मिंग CO2 ना. ये कार्बन 2 ऑक्साइड जो है निकल जा रहा है. दिस इज फॉर्मिंग CO2. Okay, so all of these reactions it happens. यहाँ तो शायद CO2 नहीं लिखा, तो यहाँ पे आप CO2 लिख लीजिएगा जरा. CO2 हम बोल देते हैं. द इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड आपके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. दिस इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस. यहाँ पे भी आप देखिए, यू आर गेटिंग R2RR वाला बन रहा है ना. आप अगर CH3COH लेंगे electrolysis, then you will get CH3 bonded to CH3. So here also you cannot, this method cannot be used for the preparation of methane. Methane can't be prepared by this method.
Clear है सबको? Yes or no? Please tell me, guys. ठीक है. So these are the methods of preparation. अब आप लोग को लग रहा है सर आइसोमर्स, तो हाँ आइसोमर्स पढ़ा दिया हमने लास्ट क्लास में. ठीक है, लास्ट क्लास इन द सेंस जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया था ना, तो वहाँ पे पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था हमने? हाँ आइसोमर्स पढ़ाया है ना हमने. हाँ ठीक है, आइसोमर्स पढ़ाया हुआ. ठीक है, एल्कीन में आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आएगा, तो एल्कीन में वो पढ़ाया जाएगा, अलग से है वो. ठीक है, मीथेन मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड नाउ, राइट. फिजिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज में जनरली आप यहाँ से याद रखिएगा, अगले क्लास में भी ना, 12th स्टैंडर्ड में यू हैव हैलो एल्कीन, हैलोरीन, अल्कोहल, फेनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड. इन दैट फिजिकल प्रॉपर्टीज वी डिस्कस टू थिंग्स. I will discuss about melting point, boiling point, and I will discuss about solubility. क्योंकि देखिए दो चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको फेस पता रहना चाहिए कि कौन ज्यादा, किसके पास ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, किसके पास ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है. एंड ऑल्सो यू शुड नो what particular reagents, what particular organic molecules they are soluble in what type of solvents. Solubility के लिए जो क्राइटेरिया होता है ना, दिस इज एक रूल होता है जिसको थंब रूल ऑफ solubility कहते हैं. दिस इज like dissolves like. ठीक है, like dissolves like. अब ये बहुत ही अफसोस की बात है कि स्टेट्स ऑफ मैटर वाला जो चैप्टर था वो आपके सिलेबस में है नहीं, वरना स्टेट्स ऑफ मैटर में सबसे पहले यही है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन दैट कैन हैपन बिटवीन सम मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो यू हैव 4 लेवल्स. ठीक है, आपके पास सबसे ज्यादा मजबूत जो होगा दैट विल बी हाइड्रोजन बॉन्ड. हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन यू हैव हाइड्रोजन बॉन्डेड टू फोन. क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ अगर हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा, दो सब्सटेंसेस विल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड. आफ्टर दैट यू विल हैव पोलर मॉलिक्यूल्स. पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे? पोलर मॉलिक्यूल्स जहाँ पे पोलैरिटी होगी. केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा होगा आपने, पोलर मॉलिक्यूल्स कब होते हैं? पोलर बॉन्ड फॉर्म होता है, एंड पोलर बॉन्ड के बाद आप पोलर मॉलिक्यूल फॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल्स तभी होगा व्हेन यू हैव, अगर आपके पास, सबसे पहले देखिएगा, अगर ज्योमेट्री और शेप सेम है, इफ यू हैव सेम शेप एंड सेम ज्योमेट्री, जैसे टेट्राहेड्रल शेप है और टेट्राहेड्रल ही ज्योमेट्री है, इफ बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर सेम एंड यू हैव सेम एटम्स अराउंड इट. ठीक है, एक एग्जांपल हम देते हैं CCl4 का. ऑल दी बॉन्ड्स हियर ना, कार्बन क्लोरीन डेल्टा नेगेटिव, तो ये दिस विल बी पोलर बॉन्ड. ऑल दी बॉन्ड्स आर पोलर, बट दिस होल मॉलिक्यूल इन itself it is not polar, because सारे के सारे डाइपोल मोमेंट्स जो होते हैं ना, दे कैंसल ईच अदर आउट. सिंस दे कैंसल ईच अदर आउट, दैट इज व्हाई व्हाट डू वी से इट इज नॉन पोलर. तो जब आपके पास सेम ज्योमेट्री, शेप एंड सराउंडिंग एटम्स, when all of these are same ना, तब क्या होगा आपके पास? it will be non polar, otherwise it is going to be polar. पोलर में आपके पास दो होते हैं, एक होता है वीक पोलर और एक होता है स्ट्रॉन्ग पोलर. एंड देन वी हैव द नॉन पोलर्स. जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है इसमें पोलैरिटी नहीं होती है. नाउ in non-polar molecules we have a force of attraction that is known as van der Waals force of attraction. ठीक है, van der Waals force of attraction क्या होता है अब हम आपको बताते हैं, थोड़ा सा इसको समझिएगा. ठीक है, एक चीज होती है डाइपोल मोमेंट, उसको याद रखना आपको. डाइपोल मोमेंट को हम दिखाते हैं म्यू से, विच इज इक्वल टू द चार्ज इनटू द डिस्टेंस सेपरेटेड. ठीक है, अब एक चीज देखिए आप, ये है आपके पास एंड ये है आपके पास. ठीक है, दीज आर द टू थिंग्स, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव. अब बताइए कहाँ पर डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, ए केस में या बी केस में? वेयर इज म्यू ग्रेटर? दोनों में चार्ज सेम है, कहाँ पे आपके पास डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, ए में या बी में? यस फहद, यस यस. ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? आया ना, बताएं. ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस, यस और नो? प्लीज टेल मी. Yes, sir. ठीक है ना, अब देखिए एक मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं. हाउ मेनी कार्बन एटम डज दिस मॉलिक्यूल हैव? टेल मी. हाउ मेनी कार्बन एटम्स? कितने कार्बन एटम है इस मॉलिक्यूल में?
5 मॉलिक्यूल्स है ना, सॉरी 5 कार्बन एटम्स है इस मॉलिक्यूल में। इसमें भी 5 है, करेक्ट है, दोनों में 5 है। ये सोनो प्लीज टेल मी, आया ना? Yes, sir. ठीक है, लेकिन आपको पता है दिस इज अ बॉल स्टिक मॉडल है ना, ये आपका क्या है, बॉल स्टिक इन द सेंस इसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं, राइट? बट द रियल मॉलिक्यूल विल बी समथिंग लाइक दिस। रियल मॉलिक्यूल देखिएगा, एक सेकंड दिखाते हैं। रियल मॉलिक्यूल इन द सेंस उसका भी सिमुलेशन ही रहेगा, रियल मॉलिक्यूल को तो कहाँ से लेकर आ जाएंगे, राइट? बट दिस इज इन डिस्प्ले विल बी, बॉल स्टिक नहीं करना है, डाइपोल नहीं करना है, कार्टून नहीं करना है, ribbon ring surface और van der Waals spheres, van der Waals sphere will be better। ठीक है, कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, and we have 4 कार्बन है आपके पास। सही है, ये है 5 कार्बन एटम वाला, ये सुनो, हाँ जी, सबको दिख रहा है? हाँ या ना, कुछ तो बता दें, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? शेयर तो Yes, sir. किया हमने, दिख रहा है ना आप लोगों को? ठीक है, 5 कार्बन एटम्स, दिस इज नोन एज बॉल स्टिक मॉडल। आपको पता चल रहा होगा क्यों बॉल स्टिक बोलते हैं। एसेंशियली इट इज लाइक दिस। अरे वजीहा, आप क्या बना रही हैं यहाँ पे? हाँ हाँ वजीहा, ये एनोटेशन सबको अलाउड किया हुआ है हमने, वेट अ सेकंड। कोलैबोरेट, एनोटेट, शेयर कंटेंट, नो यू कैन नॉट, नो यू कैन नॉट एनोटेट नाउ। ठीक है, चलिए, अब ये देख रहे हैं बिल्कुल स्फेयर की तरह दिख रहा है अब, ये सुनो प्लीज टेल मी, है ना? अब दूसरा हम बनाते हैं आपका, सेलेक्ट these and let me clear this out। वन कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। इसको पहले एनर्जी में इसको सेट कर दिया, देन वन वॉल स्फीयर्स। ये देखिए, ये आपको लाइन की तरह दिख रहा है, ऐसा नो प्लीज टेल मी, इसमें ये लेकिन 5 कार्बन एटम्स है, करेक्ट है? तो क्या हम ये कह सकते हैं, नाउ प्लीज सी, क्या हम बताना चाह रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दिस इज काइंड ऑफ अ स्फीयर नाउ, एंड दिस इज काइंड ऑफ अ लाइन नाउ। ठीक है, नाउ बोथ ऑफ दीज आर नॉन पोलर, बिकॉज यहाँ पे आपको पता है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में पोलैरिटी उतनी ज्यादा नहीं होती, एंड ऑल ऑफ देम हैव सेम स्ट्रक्चर। ठीक है, चारों, इसके चारों तरफ क्या है, इट हैज आइदर कार्बन और हाइड्रोजन, तो सबकी पोलैरिटी सेम है, एंड दैट इज व्हाई बोथ ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स आर नॉन पोलर, बोथ ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स आर नॉन पोलर। बट मोमेंटरली स्पीकिंग क्या हो सकता है, यहाँ पे एट वन एंड यू कैन हैव पॉजिटिव चार्ज, at one end you can have negative charge, momentarily speaking। momentarily का मतलब एक मोमेंट के लिए ऐसा हो सकता है। similarly momentarily you can have positive charge and negative charge here। अब इसमें देख के बताइए कहाँ पे डाइपोल ज्यादा होगा? एक ही होगा पॉजिटिव, मैंने 4 पॉजिटिव बना दिया दिखाने के लिए, लेकिन एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव। टेल मी विच वन, ए या बी, कहाँ पे ज्यादा होगा डाइपोल मोमेंट? डिस्टेंस देख के बताइए ना, पॉजिटिव और नेगेटिव में यहाँ पे इतना डिस्टेंस है, पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे इतना डिस्टेंस है, कहाँ पे ज्यादा होगा डाइपोल मोमेंट, ए या बी? ठीक है, ओके, मेक सेंस एवरीवन कि बी में डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, करेक्ट है? यस और नो, देवांगी, हिबा, ऑल ऑफ यू टेल मी, Yes, sir. ऑल ऑफ यू एग्री ना, डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। नाउ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोलैरिटी। जो डाइपोल मोमेंट है आपका अगर ज्यादा होगा, उन दोनों चीज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा। इफ दिस डाइपोल मोमेंट इज हायर, इस मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। इफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हायर, then boiling point will be higher, directly proportional to the force of attraction. ठीक है, that is why we can say that branched alkenes have lower boiling point as, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, as they attain a shape of sphere which lowers the ये मोमेंटरली होता है। मोमेंटरली जब आपके पास डाइपोल मोमेंट बनता है तो उसको वैन डर वाल इंटरैक्शन कहते हैं। लोवर्स दी वैन डर वाल force of attraction, it lowers the van der Waal force of attraction. Clear है सबको? Is this clear to everyone? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. ठीक है, हम एक और चीज लिख सकते हैं, boiling point is inversely proportional to branching. तो अगर हम 5 कार्बन किया, और also one more thing we can write, boiling point is directly proportional to number of carbon atoms. मास ज्यादा होगा तो ज्यादा आपके पास वहां पे मोमेंटरली पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस बनने की मतलब सलाहियत बढ़ जाएगी वहां पे। सो फॉर एग्जांपल, इफ आई हैव 1 2 3 4 वाला 5 कार्बन एटम, I have 1 2 3 4 and 1 carbon atom here, and I have 1 2 3 and 4 5. So I have A, B and C. If I am going to measure the boiling point, then A का highest होगा, followed by B and then followed by C, और अगर हम D के मान ले बात 3 कार्बन एटम का, तो D का सबसे कम होगा। ठीक है, यहाँ पे because number of carbon atoms कम है। First of all, you will look at number of carbon atoms, then you will look at the branching. Please write this down. Anyone still writing? चलिए नेक्स्ट लिखिए, केमिकल, अच्छा सॉल्युबिलिटी के बारे में लिख लीजिए। सिंस alkenes are non-polar, they are not soluble in water. Alkenes are soluble in organic solvents such as benzene, hexane, etc. Done. अब लिखिए chemical properties. केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले लिखिएगा हैलोजनेशन। हैलोजनेशन ये आपका एक एग्जांपल है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, ठीक है। और इस सब्स्टिट्यूशन, फॉर एग्जांपल यू हैव मीथेन, carbon with 4 hydrogens, it reacts with Cl2 in the presence of light, h nu, एक frequency of light के साथ ये क्या करता है, reacts and it will form
carbon with 3 hydrogens as it is, and one of the hydrogen is replaced by chlorine. Plus you will get what? Tell me, what are we going to get? We are going to get HCl. ठीक है? Now please see, जो important बात है यहाँ पे, if I have CH4, I react it with chlorine in the presence of HNu. Now chlorine replaces one hydrogen atom, CH3Cl. Now, obviously ऐसा तो नहीं ना कि एक साथ ही सारे के सारे मीथेन they will get converted to CH3Cl. There will be some CH4 still remaining. ठीक है ना? ऐसा तो नहीं CH4 कुछ रहेगा. And you have CH3Cl also. There will be also chlorine that will be remaining. Now the chlorine is going to replace one of the another hydrogen. So you will get CH2 and there will be 2 chlorines. Now chlorine can still do replacement. So you will have CHCl3. Still can do replacement. It will form CCl4. अब ये रुक जाएगा. यहाँ से आप कुछ नहीं replace कर सकता Cl2. Right. Now when we do this reaction, what are we going to get? We will get majority of them will be methane. से हमको क्या मिलेगा? मीथेन तो हम लोग स्टार्टिंग मॉलिक्यूल है. Majority of the molecule will be chloromethane. Then there will be dichloromethane. Then there will be trichloromethane. Then there will be tetrachloromethane. सबसे ज्यादा अमाउंट मोनोक्लोरोमीथेन का होगा. ओके, समझ नहीं आया. देखिए बहुत सारे बच्चों को लगता है ना वो पहले हम वो चीज खत्म करते हैं. CH4 से CH3Cl बन गया. ठीक है, अब रिएक्शन खत्म हो जाएगी बिकॉज सारा का सारा CH4 रिएक्ट करके Cl2 से HCl भी बन गया, सब खत्म हो जाएगा. बट ऐसा नहीं होता है. You have millions of molecules. So let us say जो पहला CH4 रिएक्ट किया होगा क्लोरीन के साथ वो CH3Cl बना लिया. Now still there are millions of chlorine remaining जो किसके साथ रिएक्ट करना चाहता है? CH4 के साथ. बट ऐसा नहीं है. That is chlorine is only there to replace hydrogen. Now if the chlorine it comes into contact with CH3Cl, ये क्या करेगा? यहाँ से भी हाइड्रोजन रिप्लेस कर देगा and it will form CH2Cl. Now if this CH2Cl it comes into contact with chlorine, as a chance, I hope all of you understand that there is a chance that this CH2Cl Cl2 can come into contact with another chlorine molecule. So this chlorine molecule will again replace one hydrogen, then again replace one hydrogen. अब समझ में आया फहद? whether भी HNu यहाँ पे है. हम बताएंगे वो why it is done in the presence of sunlight या फिर आपका यहाँ पे HNu किस वजह से रहता है. ठीक है. ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिख रहा है you are going to get we get a mixture of mono, di, tri and tetra haloalkenes. ठीक है. Another thing, for example, if you are reacting butane, chlorine in the presence of sunlight or any form of light. Now butane में आपके पास दो तरह के हाइड्रोजन है. There is one hydrogen that is present here, that is primary carbon के पास. You have 3 hydrogen atoms. Then these 2 carbon atoms they have hydrogens and both of these carbon atoms are similar. आपके पास दो ही टाइप के कार्बन है and that is why you have only 2 types of hydrogen. So here also there can be 2 reactions. 2 reaction हो सकते हैं. आपको क्या मिल सकता है? एक से you will get this one monochlorocarbon and you will get this one monochlorocarbon. Okay, so you are going to get, in this case you are going to get 2 different types of monochlorocarbons. कैसे आप लोग को पता लगेगा कितने टाइप्स के मिलने वाले हैं? You have to identify the types of carbon atom. For example, if you take propane, here also you have 2 types of carbon atom. These terminals one are similar and then this one is different. So यहाँ पे भी आपको 2 मिलेगा, 2 केस मिलेगा. Cl2 in the presence of HNu you are going to get एक क्लोरीन ऐसा टर्मिनल कार्बन के साथ and 1 chlorine in the middle carbon Cl के साथ. ठीक है. Now if you have, let us suppose, cyclic alkene. Now in cyclic alkene at this time when you don't have any other substituent, then in this case all the carbon atoms are similar. किसी भी कार्बन में कोई dissimilarity नहीं, all the carbons are similar. So you are going to get only 1 monochloro product. आपको बस क्लोरीन किसी एक कार्बन में लगा दीजिए, you are going to get only this product. ठीक है. अब बाकी आपके पास डाई और टेट्रा मिलेगा, लेकिन मोनोक्लोरो में आपको एक ही प्रोडक्ट मिलेगा. As you can see here I am getting 2 different types of monochloro product. Here also I am getting 2 different types of monochloro product, but here I am getting only 1 type of monochloro product. यहाँ तक सबको समझ में आया SNOPCl में guys? Till here the types of monochloro product that you are going to get.
and it gives mixture. फहद, आप जो बोल रहे थे नहीं समझ में आया, वो समझ में आया आपको? यस फहद, टेल मी। आ गया आपको, ठीक है। बाकी देवांगी, हिबा, अब्दुल्ला, तारीफ, वजिया ने बोला आ गया। व्हाट अबाउट यू गाइस, एनी डिफिकल्टी? नहीं ना? यहाँ पे आप दो चीज और लिख लीजिएगा। So, जी बताएं। can we do it pentane? पेंटेन, हाँ पेंटेन कर सकते हैं। देखिए ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, Yes, sir. और ये एक अलग है। तो कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट मिल जाएंगे बताएं? टेल मी, हाउ मेनी मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स? जी हिबा, Oh, 4. कैसे 4? 3 ना, Oh, sorry, 3. रेड ग्रीन ब्लू, है Yes, ना? sir. ठीक है। नेक्स्ट लिखिए। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर एल्केन्स विथ हैलोजन, हैलोजन की अगर हम बात करें, प्लीज राइट। Rate of reaction for different halogens. Halogens की अगर हम बात करें, so F2 is fastest, followed by Cl2, followed by Br2, followed by Br2, ठीक है, हाँ, then followed by I2, ठीक है। Now if I talk about rate of reaction for alkenes, so 3 degree is fastest, followed by 2 degree, and then followed by 1 degree. Done everyone? Yes or no? Please tell me. हाँ जी, सबने कर लिया? ठीक। ना अब यहाँ पे मैकेनिज्म लिखिए। दिस फ्री रेडिकल जो आपके पास यहाँ पे हैलोजनेशन हो रहा है, इट हैपेंस बाय फ्री रेडिकल मेथड। फ्री रेडिकल बनता है यहाँ पे इंटरमीडिएट। इफ यू रिमेंबर फ्री रेडिकल फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इट इज सिमिलर टू व्हाट? फ्री रेडिकल इज वेरी सिमिलर टू कार्बोकेटाइन, ठीक है। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव 3 डिफरेंट स्टेप। जब भी आपके पास फ्री रेडिकल का कोई भी रिएक्शन होगा तो आपके पास 3 स्टेप्स होंगे। फर्स्ट वन इज नोन एज चेन इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या होता है आपके पास? इनिशिएशन में आप लोग सबसे पहले क्या होता है, फ्री रेडिकल बनाते हैं। फ्री रेडिकल कैसे बनेगा? फॉर एग्जांपल यू हैव क्लोरीन in the presence of H nu, the presence of light, there will be homolytic cleavage. एक इलेक्ट्रॉन इसको मिला, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसको मिला, you will get chlorine free radical and chlorine free radical, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप बोलते हैं, देखिए इनिशिएशन में क्या होगा, you don't have in reactant, you will have 0 free radical. In products you are going to have free radicals. Propagation में next step is what? Next step is propagation. Now हम लोग ले लेते हैं CH3 CH4 का केस ले लेते हैं, ठीक है। इन CH4 व्हाट इज गोइंग टू हैपन, प्लीज सी। CH4 में you have 4 hydrogens attached to carbon atom plus there will be a chlorine free radical, ठीक है। आपको क्या होगा? क्लोरीन फ्री रेडिकल होगा, and this chlorine free radical it will attack on one of the hydrogen atoms. किस पे अटैक करेगा? ये हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। हाइड्रोजन पे अटैक करेगा इस तरह से। तो हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है ना, एक बॉन्ड ऐसे तोड़ेगा, ये कार्बन फ्री रेडिकल एक बॉन्ड यहाँ से लेके आएगा,
and this one electron will go to the carbon atom like this. So you'll have carbon with the 3 hydrogens and 1 free radical. और H और Cl तो एक दूसरे से मिल गए, हाथ मिला लिया इन दोनों ने, क्या बना दिया, HCl बना दिया. Now propagation में देखिए, you have 1 free radical in the reactant and 1 free radical in the product also. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. आपने अगर मैकेनिज्म आया इनिशिएशन, प्रोपोगेशन और टर्मिनेशन आपने याद करके रखा है तो ये ध्यान रखिएगा. इनिशिएशन में you will have free radicals only in the product. Propagation you will have free radical in the reactant and 1 free radical in the product also. Now this CH3 free radical, it can then attack on what? It can then attack on the chlorine. ये किस पे अटैक कर देगा, ये अटैक कर देगा किस पे, क्लोरीन पे. कैसे क्लोरीन पे, Cl वाले क्लोरीन पे. नाउ यहाँ से ये क्लोरीन यहाँ से लिख आएगा इलेक्ट्रॉन, एंड दिस कार्बन एटम विल कम विद इलेक्ट्रॉन हियर, और ये क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन एक निकल जाएगा. सो यू विल हैव CH3 एंड Cl, दोनों ने हाथ मिला लिया और एक Cl फ्री रेडिकल आपको बचा रहेगा. यहाँ पे भी देखा आपने, यू हैड फ्री रेडिकल हियर एंड यू हैव गॉट अ फ्री रेडिकल इन द लास्ट स्टेप आल्सो. ठीक है. नाउ प्रोपोगेशन में देयर कैन बी अनदर थिंग्स आल्सो हैपनिंग. ठीक है, प्रोपोगेशन में आपके पास दूसरी चीजें भी हो सकती हैं. फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए ये CH3 ये CH3Cl है, इस CH3Cl को क्या कर सकते हैं हम, एक और सिगरेट, हाँ ये CH3Cl है ना, ऐसा हो सकता है ना, ये Cl क्या करेगा, एक हाइड्रोजन ले सकता है. सो फॉर एग्जांपल यू कैन से CH3Cl plus Cl free radical. This Cl free radical take one of the hydrogen atoms और ये क्या हो जाएगा, CH2Cl plus HCl. Now this CH2Cl free radical, ठीक है, free radical can react with again chlorine and chlorine, और फिर से वही CH2 free radical इसको देगा and you will get what, CH2 और 2 क्लोरीन मिल जाएंगे आपको, plus you will get again Cl free radical. इसी तरह से प्रोपोगेशन के बहुत सारे स्टेप्स हो सकते हैं. ठीक है, डोंट वरी अबाउट प्रोपोगेशन. आपने ये फर्स्ट 2 स्टेप भी लिख दिया, दैट इज एनफ. ठीक है, देन यू आर गोइंग टू राइट द चेन टर्मिनेशन स्टेप्स. टर्मिनेशन में आपके पास मेजर जो स्टेप होते हैं वो 3 स्टेप होते हैं. आपके अगर क्लोरीन फ्री रेडिकल और क्लोरीन फ्री रेडिकल मिल गए, अगर ये आपस में एक दूसरे से टकरा गए तो आपको क्या दे देंगे, क्लोरीन दे देंगे. सिमिलरली अगर आपके पास CH3 और CH3 फ्री रेडिकल आपस में टकरा गए, CH3 फ्री रेडिकल प्लस CH3 फ्री रेडिकल अगर आपस में टकरा गए तो आपको क्या मिल जाएगा, CH3 मिल जाएगा. ठीक है, देन एट लास्ट अगर आपके पास CH3 फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल टकरा गए तो आपको क्या मिल जाएगा, CH3Cl मिल जाएगा. ठीक है, और एक और चीज हम आपको बता देते हैं, जो ये 3 स्टेप है ना, इसमें से इनिशिएशन जो होता है सबसे पहले होगा, लेकिन प्रोपोगेशन और टर्मिनेशन एक साथ होते रहते हैं. ऐसा नहीं कि मतलब इनिशिएशन स्टार्ट होगा, इनिशिएट करता है, ऐसा नहीं कि इनिशिएशन एक बार हो गया उसके बाद वो आराम से बैठा. इनिशिएशन वाले स्टेप्स होते रहते हैं. ठीक है, प्रोपोगेशन वाले स्टेप्स होते रहते हैं, टर्मिनेशन वाले स्टेप्स सारे के सारे एक साथ होते रहते हैं, लेकिन स्टार्ट होगा सबसे पहले जो आपके पास रिएक्शन होगा ना, वो इनिशिएशन होगा, और फिर होता रहेगा. प्रोपोगेशन भी हो रहा है, टर्मिनेशन भी हो रहा है. आखिरी जो सबसे लास्ट में जो रिएक्शन खत्म होगा, दैट विल बी वन ऑफ द टर्मिनेशन स्टेप, बिकॉज जब तक फ्री रेडिकल रहेगा प्रोपोगेशन चलता रहेगा. ठीक है, तो सबसे लास्ट रिएक्शन जो होगा दैट विल बी टर्मिनेशन, और सबसे पहला रिएक्शन जो होगा इनिशिएशन, और उसके बीच में तीनों के तीनों होते रहेंगे. इज दिस क्लियर? आपको ये फंडा समझ में आ रहा है? यस और नो प्लीज टेल मी. इनिशिएशन के बारे में जो हमने कहा, यस और नो प्लीज टेल मी गाइस, एंड टर्मिनेशन के बारे में. यस देवांगी, हिबा, तारीफ, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इनिशिएशन का मतलब जो फर्स्ट रिएक्शन हो. ठीक है, ऐसा नहीं कि सारे के सारे क्लोरीन एक साथ सबसे पहले हम Cl फ्री रेडिकल बनाते हैं, हम इंतजार कर रहे हैं, बाकी प्रोपोगेशन का कोई स्टेप नहीं हो रहा, सिर्फ Cl फ्री रेडिकल टूट रहा है. 1 मिलियन मॉलिक्यूल है Cl2 के, वो सारे टूट रहे हैं, टूटने का इंतजार कर रहे हैं, बाकी सारा मीथेन ऐसे बैठा हुआ है. Cl टूट जाए तो फिर हम रिएक्ट करेंगे, ऐसा नहीं होता है. ठीक है, इट डजंट हैपन. एक Cl टूटा, CH4 तुरंत रिएक्ट करेगा. ओके, प्रोपोगेशन स्टेप समझ में नहीं आया? एक सेकंड फहद. ये स्टेप देखिए आप, Cl फ्री रेडिकल है, इट कैन अटैक ऑन हाइड्रोजन. ठीक है, इसने अटैक किया यहाँ से हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया. ठीक है, इट वाज मेड अप ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन दिस बॉन्ड, और ये इलेक्ट्रॉन किसके पास चला गया, कार्बन के पास चला गया. ओके,
So you are getting what? You are getting here CH3 free radical plus HCl. ये समझ में आया ये रिएक्शन फहद? yes or no please tell me. हाँ या ना बताएं, ये समझ में आया आपको? नेक्स्ट में क्या कर रहा है, ये CH3 फ्री रेडिकल है, ये CH3 फ्री रेडिकल किसको अटैक कर रहा है? क्लोरीन को अटैक कर रहा है। एंड क्लोरीन के बीच में भी आपके पास क्या है? यू हैव डबल बॉन्ड। ये फ्री रेडिकल यहाँ से आया, इसने एक क्लोरीन से हाथ मिला लिया, तो आपको क्या मिलेगा? CH3Cl। ये समझ में आया हाँ या ना बताएं? अब प्लस एक Cl फ्री रेडिकल मिलेगा, ठीक है। और प्रोपोगेशन स्टेप और भी हो सकते हैं, इतना ही नहीं है, आपको ये दोनों जरूरी है, बिकॉज आपको क्या बनाना है? आपको कम से कम यहाँ तक तो बनाना है, CH3Cl तक तो बनाना है, राइट। प्रोपोगेशन में आपको ये दो स्टेप्स दिखाने पड़ेंगे बस, ठीक है। दीज आर ऑप्शन। इसके अलावा प्रोपोगेशन में आपके पास एक स्टेप ये भी हो सकता है, CH3 फ्री रेडिकल, और ये किसको अटैक कर दे रहा है? CH4 को ही अटैक कर दे रहा है। CH4 के एक CH कार्बन को अटैक कर दे रहा है। You have like this. Let us suppose हाइड्रोजन कार्बन CH3, these are the two electrons। तो यहाँ पे ये आया यहाँ से, और इसने यहाँ से एक हाइड्रोजन को ले लिया, आपको क्या मिलेगा? एक CH3 फ्री रेडिकल यहाँ पे और एक CH3 फ्री रेडिकल यहाँ पे, ठीक है। एक CH4 रहेगा और एक CH3 रहेगा, सॉरी। you'll have one CH4 and then one CH3 free radical, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे प्रोपोगेशन स्टेप होते रहेंगे। The two steps that you have to understand are these two steps. Please write this down. और वजिया जो आपने पूछा था ना, why do we use sunlight? Please write. You can use any one of these things. Helper. आप हीट यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज कर सकते हैं, लाइट यूज कर सकते हैं, एंड पेरोक्साइड यूज कर सकते हैं। All of these they do homolytic cleavage। ये सब क्या करते हैं?